Okay. Hello, my little Powerpuff Girls and energetic boys. So, we are going to start with starter. Okay. So, I hope that you have a concept of proper noun and common noun, and mainly the concept of noun. Noun means the name of any person, any place, or anything. Okay. Proper noun means a special, which is unique, special name, special person, special things. And common noun is simply as a noun. It is a name of a very common thing, common place, common name. Okay. So let's read the first line. Many things that we use are named after people. Proper nouns have now becomes common noun every day. Oh my god, ये क्या बात हो गई? अच्छा जी, मैनी थिंग्स दैट वी यूज़ आर नेम्ड आफ्टर पीपल. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग किसी के नेम के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके उसको एक और नेम बना लेते हैं. ओके, आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल्स लेटर. और प्रॉपर नाउन हैव नाउ बिकम कॉमन नाउन एवरी डे. हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट प्रॉपर नाउन इज़ हैज़ बिकम और हैव नाउ बिकम अ कॉमन नाउन टुडे? It is possible because when a name of a proper noun is used and we are just हम लोग कुछ ऐसे words होते हैं जिसके अंदर से हम कुछ words extract कर लेते हैं और हम उन extracted words को commonly use करना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि proper noun जो हैं वो common noun की तरह use हो रहे हैं. proper noun जो है वो common noun बन चुके हैं. Okay, just take an example of Lilliputians. As our topic name is Gulliver and Lilliput. Lilliput is the name of a place and Gulliver is the name of a person. Gulliver and Lilliput. Okay. So example में है Lilliputians after the people of Lilliput is now used to describe things very small and tiny. Little say Lilliput. Little and Lilliput are very much resemble. Okay. So Lilliputians वो होते हैं जो Lilliput के रहने वाले हैं और लिलिपुशियंस क्या हैं लिलिपुशियंस हैं जो लिलिपुट में रहते हैं. और वो कौन से लोग हैं जो साइज़ में बहुत ही टाइनी हैं. ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? लिलिपुशियंस, जो बहुत स्मॉल है. इट इज़ जस्ट लाइक द साइज़ ऑफ आवर फिंगर, हमारी फिंगर से भी छोटे हैं. ठीक है, तो इसलिए उन्हें कहते हैं लिलिपुशियंस. सो अब लिलिपुशियंस की रिजेम्बलेंस किससे हो गई? छोटी छोटी चीज़ों से. ठीक है, तो हम लिटिल चीज़ों के लिए, छोटी चीज़ों के लिए भी हम लिलिपुशियंस यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दैट यू मे बॉदर द कॉन्सेप्ट विच आई एम गिविंग टू यू. व्हाई इट इज़ नॉट फोकसिंग? Now just come towards a little exercise. Match the pictures with the name of people given below. Can you guess how or why these objects got their name? Okay. First picture is of sandwich, second of wheels and a teddy bear. Okay. ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं, हमारी रेगुलर चीज़ों में हैं. अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन तीन चीज़ों को नीचे तीन नाम दिए हुए हैं, उनके साथ हमने इनको मैच करना है. और मैच ऐसे ही नहीं कर देना, इनके साथ इनका रिलेशन है, क्योंकि नीचे जो तीन नाम गिवन हैं ये प्रॉपर नाउन है और ऊपर जो तीन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो कॉमन नाउन है. सो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन्स हैव नाउ बिकम कॉमन नाउन्स एवरी डे. सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? It's very simple. For doing this we should have a little bit knowledge about the proper noun. First one is Theodore Roosevelt, 1858 to 1919, US president from 1901 to 1909. Okay, who was he? Actually he was the president of US. Okay, and he was famous for the teddy bear, because when he went for hunting, he just refused to kill a teddy bear, and her nickname was also Teddy. So actually you can say, and we can say that Theodore Roosevelt was a person who invented teddy bear. And after that the cartoons were made on teddy bears and the stuffed toys were going to made on teddy bears. सो हम कह सकते हैं कि थियोडोर रोजवेल्ट ने टेडी बियर को इन्वेंट किया था और ये इसकी एक एडवेंचरस हिस्ट्री का पार्ट है. ठीक है, सो थियोडोर रोजवेल्ट को आप मैच करेंगे टेडी बियर के साथ. ओके, नाउ सेकंड वन इज़ जॉन बॉयड डनलॉप फ्रॉम 1840 to 1921.
अच्छा बच्चों जी, इसकी ये हिस्ट्री थी कि ही वॉज अ पर्सन हु इन्वेंटेड अ रबर बेस्ड थिंग्स. जो रबर से चीज़ें बनती है ना, ये वो चीज़ें इन्वेंट करता था. तो व्हील्स, यू नो, डेफिनेटली यू राइड अ बाईसाइकिल, यू ट्रैवल इन अ कार्स ऑन बाईसाइकिल. तो इन सब व्हीकल्स के व्हील्स होते हैं. तो ये व्हील्स किससे बने होते हैं? रबर के बने होते हैं. तो जो जॉन बॉयड डनलॉप था, ही वॉज यूज टू इन्वेंटेड द थिंग्स ऑफ रबर एंड ही इन्वेंटेड द व्हील्स ऑफ ट्राईसाइकिल. जो वो साइकिल जिसके 3 पहिए होते हैं, तो उसने उनके व्हील्स जो थे वो डिस्कवर किए थे, इन्वेंट किए थे. तो यू कैन मैच पार्ट 2 विद व्हील्स. ओके. एंड थर्ड वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जॉन मॉन्टेग द 4th Earl of Sandwich. सैंडविच, यू नो, ये आपको सैंडविच नज़र भी आ रहा है और उसके नेम में भी सैंडविच आ रहा है. लेकिन देयर इज़ अ लिटिल बिट हिस्ट्री टू. He was from 1718 to 1792. So what is the history that whenever he just want to play a game और उसका दिल नहीं करता था गेम छोड़ने को, तो what he did, he took a roast piece and a sandwich and a bread, and he just toasted it together, and he used to eat it by his own hands. So he, you know, you can say that he discovered sandwich. और you know, हम लोग अपनी डेली लाइफ में सैंडविच कितने शौक से खाते हैं. सो इट इज़ जस्ट अबाउट अ वेरी हल्का फुल्का खाना चाना. तो वो अपनी गेम को कंटिन्यू रखने के लिए अपने आप को खाने में मसरूफ़ करता था, एंड ही इन्वेंटेड सैंडविच. ठीक है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप दैट यू मे एन्जॉय दिस. ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए और ये आपके काम आएंगी. ठीक है. सो चाहे नाम आप लोगों को ना याद हो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन 3 चीज़ों की हिस्ट्री क्या है एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू द प्रॉपर नाउन. ओके. सो ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स एंड कीप इट इन योर माइंड. इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर. ओके.